Good morning, my dear students. Today I am going to take English from first flight, and the topic is the tale of Custer the dragon. So today I am going to take part 3 of this lesson. Okay? So today I will be teaching you multiple choice questions. Okay? Already I finished this lesson. So I welcome you in today's class, and the multiple choice questions are before you. Question number 1: Who is the poet of the poem The Tale of Custer the Dragon? The options are A. Carl Sandburg, B. Ogden Nash, C. Caroline Wells, D. Walt Whitman. So Carl Sandburg, Caroline Wells, Walt Whitman, all the options are absolutely wrong. So the correct answer is Ogden Nash. Option B, Ogden Nash. Clear? Now it's time to move on to the next slide. And the next question is before you. Totally you have 15 questions on this board. What was the name of the black kitten? और जो ब्लैक किटन के बारे में इस कविता में हम लोग चर्चा किए हैं, उस ब्लैक किटन का क्या नाम है? द ऑप्शंस आर ए कस्टर्ड, बी इंक, सी ब्लिंक, डी मस्टर्ड. सो हियर A, C, D, these three options are absolutely wrong. Option B, ink, is absolutely correct. So the name of the black kitten was ink. Clear? Now I will move on to the next slide. And the third question is before you. What was the name of the grey mouse? इस ग्रे माउस का क्या नाम था? A. Custard, B. Ink, C. Blink, D. Mustard. So A. Custard is wrong, B. Ink is wrong, D. Mustard is wrong, C. Blink is the correct answer. So the name of the grey mouse was none other than Blink. Okay? Clear? So let's move on to the next question. And the next question is, who is described as the most timid of all? ये सभी जितने जानवर थे, जितने जंतु थे, इसमें से सबसे डरपोक किसको डिस्क्राइब किया गया है, किसको बताया गया है? ए किटन, बी माउस, सी ड्रैगन, डी डॉग. सो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी आर रॉन्ग. ऑप्शन सी, ड्रैगन, is correct answer. So dragon is described as the most timid of all animals. Belinda had. Okay? Now I'll move on to the next slide, and question number 5 is before you. Name the poetic device used in the line, and the little yellow dog was sharp as mustard. Okay? Poetic devices जो होते हैं, कौन सा इसमें यूज किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है. ठीक है? ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, बी मेटाफोर, सी एजोनेंस, D simile. So option A, B, C
are incorrect. Option D, simile is the correct answer. So simile is used as the poetic device in the line, and the little yellow dog was sharp as mustard. Okay. This all comes under figures of speech. Okay. Then the next question, these are called poetic devices. What all does the dragon possess? ड्रैगन के पास क्या क्या चीज थे? ठीक है, उसके पास ए बिग शार्प टीथ था क्या? स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, बी सी शार्प टोज था क्या? यस, तीनों था. बिग शार्प टीथ ड्रैगन का था, स्पाइक्स था, मतलब कील का जैसा शरीर था उसका, शार्प टोज थे उसके, तीनों थे. इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव, ऑल थ्री आंसर्स आर ए बी सी, ये तीनों सही है. इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. Name the poetic device used in the line mouth like a fireplace. Okay, ये जो poetic device है mouth like a fireplace, ये कौन सा poetic device है इस sentence में, इस phrase में? Okay, ए है oxymoron, बी है metaphor, सी है assonance, डी है simile. सो यहां भी ए बी सी सही नहीं है. ऑप्शन डी सिमिली इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये सब पोएटिक डिवाइसेस है जो कि पोएम्स में यूज किए जाते हैं पोएट्स द्वारा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिड बेलिंडा यूज टू टीज? बेलिंडा किसको चिढ़ाया करती थी? ए किटन, बी माउस, सी ड्रैगन, डी डॉग. चार ऑप्शन है. सो बेलिंडा किटन को तो नहीं चिढ़ाया करती थी, यू नो वेरी वेल, आई हैव टॉट यू. ड्रैगन माउस को नहीं चिढ़ाया करती थी, माउस को भी नहीं चिढ़ाया करती थी, डॉग को भी नहीं चिढ़ाया करती थी, और वो भी ड्रैगन को फुलिश समझती थी, डरपोक समझती थी. सी ट्रीटेड द ड्रैगन टू बी अ कावर्ड. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बेलिंडा यूज्ड टू टीज द ड्रैगन. ड्रैगन को ही चिढ़ाया करती थी बेलिंडा. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. This slide is for question number 9. Who saved everyone from the pirate? वो जो समुद्री डाकू था उससे किसने बचाया? सभी को, सभी का जान को बचाया. किसने बचाया? वे सब जानवर थे, उनमें से किसने बचाया? सो द ऑप्शंस आर हियर. ए किटन, बी माउस, सी ड्रैगन, डी डॉग. सो ऑप्शन ए किटन सही नहीं है, माउस भी सही नहीं है, डी डॉग ये भी सही नहीं है. ऑप्शन सी ड्रैगन इज द करेक्ट आंसर. सो द ड्रैगन सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पायरेट. क्लियर? नेक्स्ट. व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट? कस्टर्ड ने पायरेट के साथ कैसे पेश आया? उसने क्या किया पायरेट को? यू ऑल नो वेरी वेल. ऑप्शन ए एट हिम, बी स्केयर्ड हिम अवे, सी हेल्ड हिम हॉस्टेज, डी नन ऑफ दिस.
So option B, C, D. Option B, C, D are incorrect. Okay. Option A is the correct answer. The custard ate the pirate. Clear? Now the next question. Who mourned over the, there is a printing mistake over here. Who mourned over the death of the pirate? पायरेट के मृत्यु पर कौन दुख किया? किसने दुख किया? उन सब जानवरों में जब पायरेट मर गया, पायरेट को निगल गया ड्रैगन, तो किसी ने दुख किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं. ए है ब्लिंक, बी है कस्टर्ड, सी है इंक, डी है नन. तो न ब्लिंक, न कस्टर्ड और न इंक, कोई भी उसके मरने पर दुख नहीं व्यक्त किया. ओके, किसी ने दुख नहीं व्यक्त किया, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन. नन इज द करेक्ट आंसर. None of the animals mourned over the death of the pirate. Clear? Now the next question. Question number 12. What did the dragon cry for? ड्रैगन क्या चीज के लिए रोता था, चिल्लाता था? आखिर वो क्यों चिल्लाता था? हाँ, क्या चीज के लिए वह बार बार चिल्लाता था? ए, बिकॉज ही वॉज हर्ट, बी, फॉर ए न्यू माउस, सी, फॉर ए नाइस सेफ केज, डी, नन ऑफ द अबव. ये चारों ऑप्शन है. तो ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉज हर्ट, ये गलत है. फॉर ए न्यू माउस, ये भी गलत है. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यह भी गलत है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द ड्रैगन क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. वो बस वो कोई सी झमेला लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता था ड्रैगन. तो हमेशा वो शांत स्वभाव का रहना चाहता था, शांत स्वभाव का जानवर था, और उसको सेफ प्लेस चाहिए था रहने के लिए, जहां आराम से रह सके शांतिपूर्वक. इसीलिए वो क्या करता था, एक सेफ केज खोजता था अपने रहने के लिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज बिफोर यू. हु वाज कॉल्ड कावर्डली? किसको डरपोक कहा गया है? ए ब्लिंक, बी कस्टर्ड, सी इंक, डी बेलिंडा. सो ब्लिंक, इंक, बेलिंडा, ये तीनों गलत है. ऑप्शन बी कस्टर्ड इज द राइट आंसर. सो कस्टर्ड वाज कॉल्ड कावर्डली. उसको ही कायर कहा जाता था. सब लोग उसको कायर कहते थे, डरपोक कहते थे. ठीक है. सबसे शांत स्वभाव का था, कोई लफड़ा में नहीं पड़ता था, इसीलिए सभी उसको कावर्ड कहते थे. क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन. And question number 14 is before you. Who was mustard? मस्टर्ड कौन था? ठीक है. ऑप्शंस आर ए, बेलिंडा's लिटिल येलो रैट. ऑप्शन बी, बेलिंडा's लिटिल येलो माउस. सी, बेलिंडा's लिटिल येलो डॉग. डी, बेलिंडा's लिटिल ग्रे ड्रैगन. तो ऑप्शन ए बेलिंडा का, वो तो चूहा का नाम मस्टर्ड नहीं था, तो ऑप्शन ए गलत है. बेलिंडा का छोटा सा माउस था, उसका भी नाम मस्टर्ड नहीं था. बेलिंडा लिटिल ग्रे ड्रैगन, उसका भी नाम मस्टर्ड नहीं था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बेलिंडा लिटिल येलो डॉग का नाम मस्टर्ड था. ओके. Is it clear? Now the next question and the last question, question number 15 is before you. Okay? Where did Belinda live?
बेलिंडा कहां रहती थी? ए, इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, ऑप्शन बी इन ए लिटिल येलो हाउस, ऑप्शन सी इन ए लिटिल ग्रे हाउस, ऑप्शन डी इन ए लिटिल पिंक हाउस। तो कविता में इन ए लिटिल पिंक हाउस का चर्चा नहीं किया गया है, इन ए लिटिल ग्रे हाउस का भी चर्चा नहीं किया गया है, इन ए लिटिल येलो हाउस का भी चर्चा नहीं किया गया है। कविता में कहां रहती थी इसका चर्चा जरूर किया गया है, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। सो ऑप्शन ए इज द correct answer. Clear? So I hope all the questions are clear to you. So please go through the questions and I'll come with a new topic in the next class. So we have come to the end of this lesson and today's session. So wait for the new topic in the next class. Thank you.